Hello, good evening, wonderful souls. I hope you are having a great time. I am your host, Dr. Rohit Bansal, and welcome to the podcast From Self Love to Self Destruction, The Dark Side of Narcissism. In this podcast, we will discuss what is narcissism, what is the impact of it on narcissists, and what are the available therapies and strategies to combat this problem. And if you are facing any difficulty in encountering any person who is having narcissistic behavior, then you are at the right place. So, thank you so much for joining in. Now, it is the time to introduce our guest speaker, Dr. Priya Bhatnagar. She is an educator, researcher, counselor, psychologist, trauma therapist, and founder of Evolve, Dr. Priya's mental health facility. She has participated as a resource person in a number of workshops, conferences, and podcasts. She has done her doctorate in clinical psychology from Delhi University. She is a dedicated mental health professional and supporting many individuals in their journey of emotional and mental well-being. Thank you so much for tuning in, ma'am. And this is our third podcast. And every time I have requested you, you have accepted my request. And this is wonderful topic. And I am hopeful that we will have an exciting conversation which will be beneficial for a lot of people. Over to you. Good evening, dear audience, and good evening, sir. सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद सर का for having me here another time. I really enjoy doing this, reaching out to our audience with wonderful topics and the need of the hours. आज हम बात कर रहे हैं नार्सिसिज्म की, जो कि काफ़ी कॉमन है and I understand especially in therapeutic context बहुत पेशेंट्स आते हैं, बात करते हैं. Let us explore ahead. Yes, yes. तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि what is narcissism and how it is different from healthy self-love. Well, a very pertinent question. Let's begin with this. Narcissism is a personality trait, right? अब नार्सिसिज्म में हमें ये समझना जरूरी है कि ये आपके बारे में है. It is about self-love, right? Narcissism is an unhealthy state of self-love. Okay. Right? In this, what happens? इतना आदमी अपने आप को सेंटर पे रखता है कि उनको बाकी रिलेशनशिप्स नहीं इम्पोर्टेंट लगते. So there are certain spaces where you would see narcissists just talking about themselves, right? They are only about themselves, their position, their needs, their wants, their demands, and their achievements. So it is a space of unhealthy self-focus. On the other hand, अगर हम आए healthy self-love पर, right? That means knowing yourself better, having a more clearer understanding of yourself. आप अपने आप को बेहतर जानते हैं, आप अपने आप के साथ ज्यादा अवेयर हैं, आपको अपने स्ट्रेंथ लिमिटेशंस बहुत क्लियरली पता है. और जब आप अपने आप को देखते हैं, रिफ्लेक्शन में सिर्फ आप नहीं है, रिफ्लेक्शन में आपके साथ जो लोग आपके सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ योर रिफ्लेक्शन, राइट? वो आपके साथ माने जाते हैं. सो देयर इज नो डिसमिसल ऑफ अदर्स. वेयरएज अगर एक नार्सिसिस्ट अपने आप को इमेज में देखेंगे, it's only the bigger shadow of the self. Yes. Right? Okay. So this is unhealthy. Correct. तो कहने का मतलब ये है कि खुद से प्यार करना अच्छी बात है, आत्ममोह इज अ गुड थिंग, लेकिन खुद से ज्यादा प्यार करना कभी कभी आपके लिए, खुद के लिए हानिकारक हो सकता है, और वो उसको हम नार्सिसिज्म कहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल सर. Excess of self love with certain strong एस्पेक्ट ऑफ डिसमिसल ऑफ अदर्स. जब आप दूसरों की तरफ एम्पैथेटिक नहीं है, आपको दूसरे रियलाइज ही नहीं हो रहे हैं,
आप इतने ग्रैंडियोस हैं अपने आप में और आपको लगता है आप सही हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ नार्सिसिज्म इज दैट दे डू नॉट हैव इनसाइट ऑफ देयर ओन बिहेवियर। उनको नहीं पता होता कि उन्होंने गलती करी है या उन्होंने दूसरों को हर्ट करा है। उनको लगता है जो उन्होंने करा वो बिल्कुल सही है। तो अपने आप की नजर में अपने आप को बहुत बड़ा पाना और समझना कि उतना ही बड़ा मैं सबकी नजर में हूँ, वो एक्सेस है, वहां अति मोह है। So what are the common myths and misconceptions about narcissism? बहुत लोगों को इसको लेकर अलग अलग भ्रांतियां हैं, तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। काफी मिसकॉन्सेप्शंस है। लोगों को लगता है कि अगर कोई असर्टिव है तो वो नार्सिसिस्ट है। अगर लोगों को लगता है कि कोई बहुत ही क्लियर है या अपनी डिमांड्स को बहुत क्लियरली समझते हैं या अपने आप को बहुत क्लियरली असर्ट करते हैं, दे फील दैट सच पर्सन इज अ नार्सिसिस्ट, व्हेयरएज दैट इज नॉट राइट। नार्सिसिज्म के कुछ टिपिकल क्लियर आइडेंटिफाइबल फीचर्स हैं, राइट। लेट अस गेट इनटू दैट। उसको देखकर आपको ऑटोमेटिकली मिथ्स क्लियर होंगे, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट का जैसे मैंने बताया इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ है, अपनी इमेज खुद बहुत बड़ी है। अनदर थिंग इज लैक ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स। दूसरों की तरफ बिल्कुल भी आप संवेदना ना रखें, उनको अपनी लाइफ में कुछ ना समझे। देन देयर इज ऑल्सो एक्सट्रीम एंगर और रेज टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म। अगर आप उनको कभी भी क्रिटिक करें या उनको कॉन्फ्रंट करें, they really do not like it, they're very aggressive over it, right? उनको अच्छा नहीं लगता है, they don't take it positively. Then कई बारी narcissists में ability to take advantage of others होता है, वो exploitative हो जाते हैं, they are manipulate, right? They will manipulate you in such a way कि ultimately उनका काम हो जाएगा, they will get it out of you, right? और आपको जो pain हुई उसको वो नजरअंदाज कर सकते हैं। As a result of which, many times in relationships, they take you for granted. इसी वजह से काफी बारी relationships में अगर आप एक narcissist के साथ हैं तो toxicity बहुत high level की है. It is a very difficult space to be in, right? पुअर इमोशनल रेगुलेशन है, अपने इमोशंस को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, वो शायद उनको डिफिकल्ट लगता है बिकॉज दे आर करेक्ट इन देयर ओन हेड स्पेस। तो अगर उनको हंसने का मन है वो ठाका मार के हंसेंगे चाहे वो सिचुएशन है या नहीं है, बिकॉज दे आर करेक्ट, राइट। दे विल नॉट बी एबल टू रेगुलेट देयर इमोशंस बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो सेल्फ पर फोकस है। इसीलिए ओरिजिन कहां से हुआ? ओरिजिन हुआ ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर नार्सिसस से, जो अपनी ही रिफ्लेक्शन वाटर पूल में देखकर उससे ऑब्सेस्ड हो गए थे। He fell in love with his own reflection till his last time। वो सिर्फ अपनी रिफ्लेक्शन को पानी में स्टेयर कर रहे थे, इतना उनको अपने आप से प्रेम हुआ, राइट। सो दैट इज द स्पेस वन कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी टू बी विद द नार्सिसिस्ट। बट इफ समबडी इज असर्टिव, कोई अपनी बातों को क्लियरली कहता है, कोई अपनी बातों को क्लियरली एक्सप्रेस करता है, या कोई अपने आप को अपनी डिमांड्स के सामने बहुत क्लियर है, वो नार्सिसिस्ट जरूरी नहीं है, राइट। इट इज जस्ट दैट दैट पर्सन इज वेरी क्लियर अबाउट ओन सेल्फ। ओके, व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ नार्सिसिज्म इन एन इंडिविजुअल? कैसे हम इंस्टेंटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? Early signs of narcissism can be identified even when being a child or being a teenager, right? जब आप मतलब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों को खेलते वक्त अगर आप किसी बच्चे को देखें कि वो अपनी हार नहीं मानता, ठीक है, वो बच्चा अपनी कभी भी साइड्स नहीं टर्न कर पाते, राइट, और जरा सा आप उनको कुछ कहें तो वो एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं। That could be the beginning, right? और आइडेंटिफिकेशन अर्ली टीनेज से ही आप देख पाएंगे। You will be able to see it, क्योंकि वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को
obedience में respond नहीं कर पाएंगे. Narcissists will not be able to take instructions, right? अगर आप उनको कहेंगे कि ये काम ऐसा कर लीजिए, no, they will not do it because they are correct in their head. जो strategy उन्होंने बनाई है वो उसी पे ही चलेंगे. So identification is as early as in teen space, but adulthood में जाकर ये बहुत सरफेस पे आ जाता है, क्योंकि आपके लॉस ऑफ रिलेशनशिप्स बहुत सिग्निफिकेंट हो जाते हैं. तो आपका रोमांटिक रिलेशनशिप टूट गया, आपका बॉस के साथ आपका रिलेशनशिप खराब है, आपका दिन आप लड़ाई करते हैं, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन विद whom you clearly attach, or you have a good relationship, they are identifiable spaces. Okay. और वो उसकी बहुत क्लियर रैशनलाइजेशन देते हैं. Okay. What are the root causes of narcissism in an individual? It is very important for us to get into the childhood. काफी समय ये देखा गया है कि narcissism का origin, it comes from space of childhood where the child has been either very strongly praised, right, or critiqued. तो कई parenting styles में आप देखेंगे, some parents they tend to praise or hold on to their child very strongly, right? अगर आपके बच्चे ने गलती करी है तो आप नहीं मानते उसका. स्कूल में टीचर आपको बुलाती है, वो कहती है कि आपके बच्चे ने बदतमीजी करी है ना, दूसरे बच्चे को मारा है या दूसरे बच्चे का सामान छीन लिया, तो आप अपने बच्चे की तरफ ओवर प्रोटेक्टिव है. नहीं, मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं करेगा, राइट? You are validating your own parenthood. You are validating yourself being a mother, but you're not realizing कि आपके बच्चा पे उसका इम्पैक्ट ये है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ तो मैं कर सकता हूँ, राइट? एंड देयरफॉर नो करेक्शंस. सो पेरेंटिंग स्टाइल जिसमें सही समय पर करेक्शन ना दी जाए, वहां नार्सिसिज्म को ग्रो करने के ब्राइटर चांसेस है. देन पेरेंटिंग स्टाइल्स जहां बहुत क्रिटिकल हो, एक्सट्रीम आप नेगेटिव है, या आप कंडीशनल लव बच्चे को देते हैं, या आपका फीडबैक बहुत सेल्फ एस्टीम ब्रेकिंग है, वहां पर भी नार्सिसिज्म की ग्रोथ it can definitely develop. Then if your child has been through emotional neglect during childhood, कई बारी पेरेंट्स से मिलता है, कई बारी सिबलिंग से मिलता है, कई बारी अपने पीयर ग्रुप से भी मिलता है. When you're not accepted as a part of peer group, when you're not included, जब आपको खेल में इंक्लूड नहीं किया जाता, you're not a part of the game, आपको बाहर खड़ा करा जाता है, वो जब अंदर से इंसान टूटता है, तो कई बारी उससे कोप करने के लिए इंसान को लगता है कि मैं सही हूँ, मैं अकेला खेल सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, राइट? स्पेस ऑफ हाइपर इंडिपेंडेंस ऑल्सो एट टाइम्स गिव्स इट एन ओरिजिन. Inconsistent parenting, you really don't know how will the parent act. अगर आपने एक बारी कोई चीज आपके हाथ से टूट गई तो पेरेंट्स ने प्यार से समझाया, दूसरी बारी टूट गई तो पेरेंट ने तमाचा लगाया, राइट? अब आपको समझ नहीं आया कि क्या चीज, कि कितना एक्सेप्टेबल है, कितना नहीं है, बिकॉज देयर आर मिक्स्ड सिग्नल्स, राइट? बियॉन्ड दिस कंफ्यूजन विद सेल्फ वर्थ हो जाती है. आपको पता ही नहीं मैं किस लायक हूँ, मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा, what all are my abilities and potentials, you are not aware of that. Then genetics also play a role. There is genetic vulnerability, there are predispositions, genetic environment is important, and then socio-cultural factors, जहाँ पर कुछ cultural spaces ऐसे होते हैं जहाँ पर power, hierarchy, success को बहुत relevance दिया जाता है, right? In such spaces, you are pushing an individual become power hungry, और उनको power चाहिए, right? To be validated as an individual. And when you come in a power position, of course you feel I'm right, I'm the only one, right? Competitive, highly competitive environments. Okay. So ये कुछ causes है, right? Narcissistic behavior का individual की personal और professional life पर क्या impact आता है? Very valid. पर्सनल लाइफ पे तो काफी गहन इसका इम्पैक्ट है, क्योंकि रिलेशनशिप्स एक्सट्रीमली टॉक्सिक हो जाते हैं. दे टेंड टू बी वेरी वेरी डैमेजिंग बिकॉज देयर इज नो स्पेस फॉर द अदर पर्सन, राइट? एंड देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ रूम फॉर अदर्स ओपिनियन.
तो रिलेशनशिप इज ओनली अबाउट दैट वन पर्सन, नार्सिसिस्ट, राइट? अब जब रिलेशनशिप सिर्फ एक ही के ऊपर होगा, obviously the second partner is going to feel uncomfortable, unheard, unseen. It goes like that. So relationships पे बहुत strong impact है, और ये सिर्फ कोई romantic relationship पे नहीं है. Right. It is also simple relationships like siblings, like your parents. You're constantly in a conflict with these relationships. आपका अपने सीनियर के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, कॉलीग्स के साथ, सबके साथ एक कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप है. एंड द बेस्ट पार्ट इज नार्सिसिस्ट कैन इंटेलेक्चुअलाइज इट वेरी वेल. वो बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे कि मेरा इनके साथ रिश्ता क्यों खराब हुआ, एंड दे विल थ्रो इट ऑन द अदर पर्सन बिकॉज इन देयर ओन हेड दे आर करेक्ट. प्रोफेशनल लाइफ पर आई मस्ट से दे हैव अ डिफिकल्ट टाइम with people dealing. They're not very great people to be in space of a job because वो instructions नहीं ले पाते. Authority figures के साथ उनका conflict बहुत strong रहता है, right? और colleagues के साथ बहुत competitive हो जाते हैं. But if we see inside, narcissists are very weak. They have very poor self-esteem. They are very fragile. उनका सेल्फ वर्थ बहुत लो होता है, अंदर से बहुत कमजोर है, और शायद उसी कमजोरी को पूरा करने के लिए वो ये कहते हैं कि सिर्फ मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं सर्वो है. नार्सिसिज्म कैसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है कि इंडिविजुअल को? नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग में इंटरफेयर करे, आपके एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स आए, आपके रिलेशनशिप्स टॉक्सिक हो जाए, राइट? देयर इज अ ब्रेक इन रिलेशनशिप, देयर आर रप्चर्स इन रिलेशनशिप्स, एंड कॉन्स्टेंटली यू आर डिससैटिस्फाइड विद सो मेनी थिंग्स अराउंड. यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज अ स्पेस ऑफ डिस्कम्फर्ट, राइट? अब वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे आप ऑलरेडी जा चुके हैं, आपके रिलेशनशिप्स खराब है, अल्टीमेटली आप अपने आप को अकेला पाते हैं, और उसको जस्टिफाई करना आपके लिए आसान होता है कि मैं अकेला ही ठीक हूँ. कई बार आप नार्सिसिस्ट में एक टिपिकल ट्रेट ये भी देखते हैं कि they tend to change, they flip easily. वो गलती करेंगे, उस टाइम बहुत गुस्सा होंगे, बाद में आप उनको देखेंगे वो नाक रगड़ के माफी मांग सकते हैं, राइट? उनका वो स्पेस आता है where they get into extreme guilt, but the moment other person responds positively, वो फिर से अपने लूप में रन करते हैं, वो फिर से बिहेवियर, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, सेल्फ ड्रिवन बिहेवियर शो करते हैं. तो ऐसे साइकिल में खुद चलना या अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली के साथ रहना, इट इज डिफिकल्ट. आप किसी से लड़े, बहुत ज्यादा आपने लड़ाई करी, लड़ाई शुरू हुई, आगे बढ़ी, आपने उसको इतना इन्फ्लेट कर दिया, फिर लड़ाई खत्म हुई, 10 मिनट बाद आपने इतना सॉरी मांगा, इतना सॉरी मांगा, सामने वाला मजबूर हो गया आपको माफ करने में, उन्होंने माफ करा, देयर इज नो करेक्शन, यू आर बैक, क्योंकि आपको रीइंफोर्समेंट मिल गया कि मैं तो ठीक था, इसीलिए मुझे माफ कर दिया गया, राइट? वहां से ऑलरेडी आप डिस्ट्रक्शन की तरफ जा चुके हैं. यू आर नॉट गिविंग एडिक्वेट स्पेस इन द रिलेशनशिप, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन, ओके, राइट? क्या नार्सिसिज्म एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? सो नार्सिसिज्म एक ट्रेट है, और अगर ये ट्रेट बहुत ज्यादा एक्टिवली प्रेजेंट है विद अदर फैक्टर्स, ऑफ कोर्स इट कैन बी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, राइट? DSM-5 में इसका प्रॉपर रिकॉग्निशन है. इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ कंडीशन. ये कोई आम चीज नहीं है, और मैं ऑडियंस से ये भी कहना चाहूंगी कि हर चीज नार्सिसिज्म भी नहीं है. जहां पर हमें नार्सिसिस्ट आइडेंटिफाई करने हैं, वहां पे हमें नॉन नार्सिसिस्ट को भी समझना है, राइट?
So of course it's a very serious mental health condition. सोसाइटी का बहुत ज्यादा फोकस है सेल्फ प्रमोशन और इंडिविजुअलिज्म पर, ठीक है, तो वो कितना अहम रोल अदा कर रहा है नार्सिसिज्म को प्रमोट करने में? राइट, सोसाइटी का सेल्फ प्रमोशन रोल आई थिंक इज अबाउट क्रिएटिंग हेल्दी सेल्फ, राइट, क्रिएटिंग हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट, क्रिएटिंग क्लैरिटी, अवेयरनेस टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, या आप हेल्दी बाउंड्रीज बनाए। अब उसमें अगर आप सेल्फ के फोकस को एक्सेसिव सेल्फ लव पर ले जाए तो यू क्रॉस दैट थिन लाइन, जो कि एक पैथोलॉजिकल और नॉन पैथोलॉजिकल को लाइन डिस्टिंग्विश करती है। नॉर्मैलिटी टू पैथोलॉजिकल के बीच में जो फाइन लाइन है, कई बार वो लाइन बहुत थिक लाइन भी होती है, बट इफ यू टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ इमेज, हेल्दी सेल्फ इमेज एज ग्रैंडियोसिटी और एक्सेसिव सेल्फ लव, तो फिर वो वहां पर आपको उस कॉन्सेप्ट को रेगुलेट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू दे मीन। दे आर नॉट सेइंग आप सर्वोसर्वी हैं, वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि आप अपने अचीवमेंट्स, अपने पोटेंशियल्स, अपनी एबिलिटीज और अपनी लिमिटेशंस को पहचानिए, अपने आप को जानिए। So if you have a good self-awareness, you can be more present in other relationships and you can have more informed choices. अब मैं इस पॉडकास्ट का सबसे अहम क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि एक नार्सिसिस्ट अपने आप को कैसे हील कर सकता है और उसके लिए क्या-क्या थेरेपीज एंड इंटरवेंशंस अवेलेबल हैं, आप प्लीज वो बताइए। नार्सिसिस्ट टू सेल्फ हील इज लेस अ पॉसिबिलिटी अनलेस उनको कोई बहुत ज्यादा लाइफ में कॉन्फ्रंटेशन या एक एक्सेसिव ट्रिगर मिले। मानिए बहुत ही अहम रिलेशनशिप आपका टूटा, राइट, और वहां से आपको एक लीड हुआ, आपको इंसाइट आई दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, या रिपीटेडली आपको लोगों ने कहा, तो सेल्फ healing is little difficult, but of course narcissism को हम otherwise through psychotherapy we can deal. There are range of interventions. Cognitive behavioral therapy works whereby we try and restructure the framing. It is a good therapy. Yes. It works on how thoughts shape up, how they lead to emotion, how they lead to a particular behavior. राइट, तो अगर आप थॉट फॉर्मेशन को प्लांटिंग स्टेज पे करेक्ट करें, डेफिनेटली इट विल लीड टू अ बेटर इमोशन एंड अ बेटर बिहेवियर, राइट। देन besides CBT we can also use psychodynamic therapy, but this therapy is really good क्योंकि ये जाएगा आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में, ये आपके पास्ट पर एम्फेसिस देंगे, कहाँ पर नॉट है, we need to unresolved, right? We need to disentangle the knot. हमें उस dark spot को closure देना है. We need you to heal from there. So आपके maybe inner child experiences को, आपके unconscious spaces को वो cover करेंगे, and from there you develop an understanding of your present behavior, right? So psychodynamic also has very great results, though it's a little longer form of therapy, but definitely with narcissism it can work. Then family therapy भी काम करती है, because family generally has a huge role in its construction. और family होती है जो सबसे ज्यादा पीड़ा में रहती है, क्योंकि narcissist is around the family, तो constant conflicts family ही देखती है. But family can also be an agent of change. Yes. They can catalyst, a healthy catalyst. Okay. Right? So family therapy, identifying the common agents, identifying triangulation spaces, identifying parenting experiences, ये सब देखकर हम एक अच्छे निष्कर्ष पर निचोड़ पे पहुंच सकते हैं. Then humanistic spaces can also be good. Interventions can be designed. अंडरस्टैंडिंग कि आपका रिफ्लेक्टिव स्पेस क्या है ना,
वहां से भी हम ट्रीटमेंट की ओर जा सकते हैं। तो साइकोथेरेपी हैज अ गुड रेंज ऑफ अल्टरनेटिव्स। इट इज जस्ट दैट नार्सिसिस्ट को हमें थेरेपी में लाना है, वो एक चैलेंज होता है, बट वंस दे आर देयर, they are very good clients, they are present, right? जी. Okay, how can an individual recognize that he is in relationship with a narcissist and how can he handle it? So जिसको हम आजकल कहते हैं रेड फ्लैग्स इन अ रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली बात, सबसे मुख्य रेड फ्लैग आपको नार्सिसिस्ट के साथ रहने का ये दिखेगा कि आपको लगेगा रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट हिम, राइट? उनकी नीड्स, उनकी डिमांड्स, उनका मन करेगा आपसे बात करने का, दे विल गो टू एनी लेंथ, राइट? और अगर उनका मन नहीं होगा आपसे बात करने का, दे विल नॉट रिसीव योर कॉल्स, दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू योर मैसेजेस। इमोशनल अवेलेबिलिटी विल बी अप टू देयर चॉइस। कभी एकदम से बहुत इमोशनली अवेलेबल होंगी, कभी एकदम से इमोशनली एब्सेंट होंगी, राइट? देन एम्पैथी मिसिंग रहेगी आपकी। एज योर पार्टनर आपकी नीड्स को वो नहीं काउंटर कर पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू गिव इट रूम। उनको लगेगा कि ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर आपको भूख लगी है, राइट, दे विल से नहीं 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 आगे चलो बाद में देखेंगे। वो तब रुकेंगे जब उनको भूख लगे। एज अ पार्टनर, व्हाट वाज द नीड, व्हाट वाज द रिएक्शन एक्सपेक्टेड, that you respond to the hunger of your partner, but instead वो dismissal पे ला सकते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, right? अभी तो खाया था, क्या हो गया, आगे चलते हैं, बाद में खा लेना, अभी कोई खाने का टाइम थोड़ी ना है। And they will give you brilliant excuses to an extent कि आप कई बारी gaslighted feel करोगे। आपको लगेगा मेरी रियलिटी ही नहीं है ये, मैं जो बोल रही हूँ मैं ही गलत हूँ। सेल्फ डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो emotional unavailability, gaslighting, then trying to take relationship for granted, right? तो ये कुछ साइंस है जो आप बहुत easily you will be able to pick up। और आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि narcissist का decision making is little challenging. Yes. They are little commitment phobic also। उनको एक रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ना, उस रिलेशनशिप को रेगुलेट करने में बहुत दिक्कत होती है। दे आर वेरी गुड चार्मर्स, दे लाइक वैलिडेशन, उनको बहुत पसंद आता है लोग उनकी तारीफ करें, राइट? एंड दे कैन वू पीपल इजीली। उनको सोशल स्पेस में अगर एडमिरेशन मिले, प्रेज मिले, वैलिडेशन मिले, दे लव इट, राइट? बट वो चार्मर्स है, दे विल ब्रिंग यू क्लोज। But the moment you are close and the moment you are theirs, right? उस समय उनका इमोशनल जो बैलेंस है वो एकदम ड्रॉप कर जाएगा and they will start taking you for granted। तो आप आधा समय रिलेशनशिप में यही सोचते रहेंगे कि क्या ये वही इंसान है जो जिनसे मैं पहले मिली थी, राइट? वो डिसोनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग, you will keep figuring। Many of my clients report नार्सिसिस्ट को पहचानना, आधा रिलेशनशिप उनका नार्सिसिस्ट आइडेंटिफिकेशन में लग जाता है, बिकॉज नोबडी हैज टॉट ना दैट देयर इज समथिंग लाइक दिस। हमने सीखा जी। एक नार्सिसिस्ट को कब थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए? जब उसको समझ आ जाए, व्हेन ही विल रियलाइज दैट ही इज नॉट बिहेविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड द थिंग्स आर नॉट इन माय हैंड्स, नाउ आई नीड टू टेक हेल्प ऑफ सम काउंसलर। Yes. तो रेड फ्लैग लग गया है, तो वो उसके लिए कब वो करे, काउंसलिंग के लिए कब जाए? नार्सिसिस्ट अपने आप को पहचान जाए, बड़ी बात है, बहुत बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। इट इज नॉट इजी। जनरली फैमिलीज रिपोर्ट करती है। यस। और फैमिलीज में भी रोमांटिक पार्टनर या जो मेजर रिलेशनशिप है, चाहे वो गर्लफ्रेंड है आपकी या आपकी वाइफ है, व्हाटएवर द मेजर रोमांटिक रिलेशनशिप, क्योंकि उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो वहां से रिपोर्टिंग आती है। और नार्सिसिस्ट्स आर जनरली रेजिस्टेंट टू थेरेपी। वो रिलक्टेंट नहीं होते हैं, वो रेजिस्टेंट होते हैं। रिलक्टेंस कैन बी हैंडल। रिलक्टेंस होती है हेसिटेंस, जाए ना जाए, जाए ना जाए, चलो देख लेते हैं।
रेजिस्टेंस है कि मैं जाना ही नहीं चाहता. एंड मेनी टाइम्स दे विल से इट इज नॉट मी हु रिक्वायर्स इट, यू पीपल रिक्वायर इट. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग स्पेस ऑफ इंटेलेक्चुअलाइजेशन. वो बहुत अच्छा रैशनल आपको दे देंगे. ठीक है, तो उनका थेरेपी में वॉक इन करना एक अपने आप में ह्यूज सक्सेस है, किसी भी तरीके लाया जाए. बट वंस दे आर इन थेरेपी, वंस दे हैव अ गुड फिट विद थेरेपिस्ट, क्लाइंट थेरेपिस्ट फिट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एवरी थेरेपिस्ट इज नॉट capacitated to deal with the narcissist, right? We have to see what is the fit. But if there is a facilitative relationship developed, एक अच्छा therapeutic bond है, definitely narcissist then will be present. फिर narcissist को आपकी therapy में आना उनका life का objective है, and they give huge transformations. They give good transformations, good results they give. Okay, last question. What are your concluding remarks for our listeners who has encountered a narcissist and how to deal with them? Very important. क्या सलाह देना चाहेंगे आप उनको, क्योंकि वो उनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा है, तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते. They might be their family members or friends. Yes, absolutely. सबसे पहली सलाह उनके लिए ये है कि आप एक्सेप्ट करें कि आपके साथ एक नार्सिसिस्ट है. क्लियर आइडेंटिफिकेशन करें, एक्चुअली ही इज अ नार्सिसिस्ट और इट इज नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ग्रेविटी रेंज क्या है, राइट? इफ यू गेट टू नो इट्स नार्सिसिज्म एज अ ट्रेट, यू एक्सेप्ट इट. वंस यू एक्सेप्ट, तो आपका जो कांस्टेंट माइंड ऑक्यूपाइड है ना रीजनिंग में कि ये ऐसा क्यों करते हैं बार बार, फिर इन्होंने ऐसा करा, फिर गलत करा, फिर बाप को नहीं सुना, फिर बच्चे का टिफिन खा गए, राइट? तो वो सब चीजें, वो आपका जो क्यों है वो सेटल हो जाएगा. यू विल बी आउट ऑफ फिगरिंग आउट एंड यू विल मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन सीकिंग. Acceptance of having a narcissist around solves many of your hurdles because you're out of confusion. Now you can think clearly कि ठीक है, मेरे साथ नार्सिसिस्ट है, अब इनका ट्रीटमेंट, इनके साथ रहना एक मेरी चॉइस है. तो अब आपकी अगर वो चॉइस है तो आप कैसे रहना चाहते हैं? आपको उनको आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताना पड़ेगा, उनको भी सेल्फ अवेयर करना पड़ेगा दैट ही इज अ नार्सिसिस्ट. इस पे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्फ्रंटेशन वहां देनी पड़ेगी, बट ग्रेजुअली विद पेशेंस, परसिवरेंस एंड विद डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशंस इट कैन बी मैनेज्ड. अल्टीमेटली इट विल रिक्वायर प्रोफेशनल हेल्प. ये सिर्फ घर वालों से मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि शायद कई बार जड़ घर में ही होती है, राइट? तो every time it's not important that only the family can help it. It will require professional space. But अगर हम उस पे ध्यान देंगे, समय देंगे, definitely पेशेंस के साथ, प्यार के साथ कोई भी जंग जीती जा सकती है. थैंक यू सो मच मैम, आपने इस संजीदा टॉपिक को इतनी बारीकी से समझाया और बहुत सारे लिसनर्स को इसके बारे में पूरा अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे मिथ्स हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं. बट आपका ये जो एंगेजिंग कॉन्वर्जेशन है, इसको सुन के आई थिंक उनको बहुत क्लैरिटी हो गई होगी. खुद से प्यार करना गलत नहीं है, सब करते हैं, सेल्फ लव इज गुड. बट जब आप सेल्फ लव को एक्सट्रीम तक लेके जाते हैं तो इट माइट लीड टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड विच एक्चुअली इज नार्सिसिज्म. ये आपको समझना जरूरी है. और नार्सिसिस्ट आपकी फैमिली में भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, तो आपको उसे टैकल करना आना चाहिए. तो जो भी थेरेपीज और टिप्स मैम ने आपको बताई हैं, आप उनके ऊपर अमल कीजिए. धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि नार्सिसिस्ट के साथ कैसे बिहेव करना है, उसको कैसे डील करना है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं माइकल जैक्सन का, जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े पॉप सिंगर थे और उन्होंने सफलता की चरम सीमा को छुआ. तो फिर उनको रियलाइज हुआ कि मेरी कभी भी डेथ ना हो, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा सफलता मिल रही थी, लोग उनकी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे और पूरे वर्ल्ड में उनका नाम था.
तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई कि वो हमेशा यंग लगे, और साथ साथ उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स हायर कर लिए। वो डॉक्टर्स हमेशा 24 आवर्स उनके साथ रहते थे कि जब भी कोई प्रॉब्लम अगर ओकर हो तो वो डॉक्टर इंस्टेंटली उनको हेल्प कर सके। बट उनको एक बात समझ नहीं आई कि डेथ इज इनएविटेबल, और वो एक्चुअली नार्सिसिज्म का एक एग्जाम्पल है। वो एक्चुअली नार्सिस्टिक बिहेवियर से जूझ रहे थे, और उनको समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, और लाइफ में आपको सफलता मिलेगी तो कभी कभी विफलता भी मिलेगी, और जब उम्र के एक पड़ाव पे आप आ जाओगे तो सफलता पीछे छूट जाएगी। उन्होंने पूरे प्रयास किए लेकिन कुछ हो ना सका। तो आप देखिए कि आपको किस तरीके से नार्सिसिस्ट को डील करना है, ठीक है ना। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, किसी को भी हो सकता है कि सोशल मीडिया से भी आता है, सोसाइटी का भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, और कभी कभी आप जिनके साथ आपका जो सोशल सर्कल है उससे भी ये अराइज हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कॉन्वर्जेशन हुआ है मैम के साथ, इससे आपको बहुत क्लैरिटी हो गई होगी नार्सिसिज्म के ऊपर, और इसके क्या इल इफेक्ट्स हो सकते हैं आपके बिहेवियर पर, पर्सनल रिलेशनशिप पर और प्रोफेशनल वर्क प्लेस पर। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इससे जूझ रहे हैं तो प्लीज अवेयरनेस क्रिएट कीजिए और स्टेप उठाइए, और अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू टेक द हेल्प ऑफ ए काउंसलर। जितना जल्दी आप इससे बाहर आ जाओगे उतना जल्दी आप हेल्दी और स्ट्रेस फ्री लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस सो केयरफुली, और आप अपना ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार देते रहिए। तो अगर आपको ये कॉन्वर्जेशन अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, एंड if you have not subscribed our channel, please do it so that you may not miss our upcoming podcast. I will see you soon with a new podcast, with a new topic and with a new guest. Till then, stay safe, stay healthy and have a blessed life. Thank you so much, ma'am. Once again, it was a wonderful conversation with you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, audience. Have a nice day ahead.